function. Okay. So what you all know about digestive system, it's a very simple system of all the physiological systems as we know. But the thing is, it's a very important system. So first of all, we all know that the definition of digestion, what is it? It is like it is a process of reducing the larger food particles as we eat them into very smaller molecules that can be absorbed into the body. Okay? As the digestive system, the process of digestion starts from the mouth and it ends at the anus. So we know what are all the major and accessory parts of the digestive system. So the major organs that consist that our digestive system is bowel, esophagus, stomach, small intestine, and the large intestine. While the accessory organs are liver, gallbladder, pancreas. So digestive tract that we as we call it gastrointestinal tract. This gastrointestinal tract which leads from mouth to anus that has these major organs line by line, while these accessory organs are all as important as the major organs. So we'll get a brief because we don't have that much time. We'll have a detailed study about all these organs, but we will have a brief study of all these parts. Okay. So जनरल प्रिंसिपल्स एज वी नो व्हाट यू विल कॉल डाइजेशन का मेन मकसद क्या है कि फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में शुड ब्रेक एज वेल एज मिक्स इट विद all the enzymes, hormones should act on it. So main what three things that you digest are your carbohydrate, fats and proteins. Carbohydrates is digested into, that is a polysaccharide at first, converts into disaccharide, monosaccharide. Like when fat is converted into smaller, simpler forms, fatty acids, glycerol, and like proteins also. Proteins are polypeptide proteins and they are converted into tripeptide, dipeptide and monopeptide. Okay. So alimentary tract, as we know, that has a continual supply of water, electrolytes, nutrients that are being absorbed in the body along with this food that we eat. Acha, what is the function of alimentary canal? Alimentary tract का function mainly है कि allows the movement of food through the alimentary tract. Secretion of the digestive juices and absorption of water, electrolytes, all is digested. Then circulation of the blood through the GIT organs, as well as control of all these functions by local nervous and hormonal systems. अब यहाँ पे जो बात आई है कि सारे functions का control is controlled by local nervous and hormonal systems. आपने ये पढ़ा होगा या पहले सुना होगा कि GIT has its own nervous system. तो अगर हम कहें कि GIT has its own nervous system, तो एक आता है आपका GIT का अपना नर्वस सिस्टम है, उसको क्या कहते हैं आप? एंट्रिक नर्वस सिस्टम. GIT is enteric and nervous system of GIT is enteric. Okay. उस नर्वस सिस्टम में as we know, अगर हम आगे जो आपकी GIT की मसल लेयर्स है, GIT whole consists of smooth muscles. तो स्मूथ मसल लेयर जो है वन बाय वन, उसमें कहाँ पे आपके म्यूकस ग्लैंड्स हैं, कहाँ आपके जो है एंजाइम्स का सिक्रीशन, कहाँ आपकी लॉन्गिट्यूडल मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स हैं. तो ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर ईसोफेगस एंड एंड्स एट द एनस. अब ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता क्या है, पूरा रन करता है आपकी GIT में और हॉर्मोन्स के सिक्रीशंस को और उसको कंट्रोल करता है. So how it does, like उसमें there are two plexuses you must have heard. There is myenteric plexus and there is Meissner's plexus. Myenteric plexus is also called as Orbeck's plexus. Meissner's plexus is also called as submucosal plexus. And this myenteric plexus, where it is located, myenteric plexus, अब हम जैसे GI muscle layer will know about it, तो हमें पता चलेगा. See, this is the outermost layer of GIT is serosa. Then there is longitudinal muscle. Afterward, there is circular muscle layer, submucosa. Meissner's plexus comes between it. Then the last muscle layer that is inside, innermost muscle layer is the mucosa. Mucosa has epithelial lining, has many glands,
So see this myotonic nerve plexus, where you can see it is located. It is located. You can see that it is between the longitudinal and the circular muscle layers. ठीक है. अच्छा हिंदी में इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को, समझ में आ रही है? मतलब अगर मैं इसको हिंदी में यस मैम ठीक है ना, अगर मैं कन्वर्ट करना हो तो वो बता देना आप. ठीक है. तो ये जो है यस आपका सीधे माइंट्री कहाँ पे है? आपकी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में. ये रही आपकी सर्कुलर मसल लेयर और ये रही लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर. तो ये यहाँ पे माइंट्री प्लेक्सस आपका प्लेस होता है. अब ये माइंट्री प्लेक्सस दोनों के बीच में क्या करता है? इट अलाउज द मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स. तो जितना भी जीआईटी में मूवमेंट होता है ऑल द फूड का, दैट प्रोपल्शन आगे बढ़ने का, दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर माइंट्री प्लेक्सस. ठीक है. दूसरा सबम्यूकोसल प्लेक्सस होता है. सबम्यूकोसल सबम्यूकोसा के अंदर होगा. तो सबम्यूकोसल प्लेक्सस व्हाट इट डज? सबम्यूकोसल प्लेक्सस सबम्यूकोसा में है तो ये जो है मेनली सिक्रीशन, क्योंकि जहां पे ग्लैंड का सिक्रीशन है, म्यूकोसल ग्लैंड्स है, वहां पे है. सो वहां पे सिक्रीशन का जो फंक्शन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर सबम्यूकोसल प्लेक्सस. ओके. तो थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन आपको एंट्रिक नर्वस सिस्टम. अच्छा एंट्रिक नर्वस सिस्टम है जरूर जीआईटी का अपना, जो ये कंट्रोल करता है आपका प्रोपल्शन एज वेल एज सिक्रीशन मूवमेंट्स. बट एज वेल एज यू हैव this sympathetic as well as parasympathetic nervous system connected to it. तो जब cerebral cortex से जब आपकी इनर्वेशन हो रहा है, sympathetic nervous system और parasympathetic, sympathetic कहाँ से होता है? sympathetic through the thoracolumbar outflow. ठीक है. thorax और lumbar से. और parasympathetic हो गया craniosacral. तो thoracolumbar outflow जब होता है और आता है आपके sympathetic system, तो मेजर ऑफ द जीआईटी इज कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक. और पैरासिम्पैथेटिक में भी कौन सी नर्व मेनली इसको कंट्रोल करती है? दैट इज योर वेगस नर्व. ठीक है. अच्छा तो सेम इज रिटन कि यहाँ पे आपके ग्लैंड्स होंगी, सेरोसा लॉन्गिट्यूडनल मसल होगी, सर्कुलर सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा. अब स्मूथ मसल होगी. स्मूथ मसल जीआईटी की पूरी मसल्स दैट आर योर स्मूथ मसल्स. दीस स्मूथ मसल्स you must be knowing that they are connected. एक सिंसाइशियम की तरह वर्क करती है हमारी पूरी जीआईटी की मसल लेयर. स्मूथ मसल्स जहां भी होंगी, लाइक आपके कार्डियक में भी जो है एक सिंसाइशियम वर्क करता है. सिंसाइशियम का मतलब क्या है? दे वर्क टुगेदर एज अ यूनिट. मतलब पूरी जीआईटी एक जो मसल लेयर है, अगर वहां पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वहां पे अगर जो है इनर्वेशन हो रहा है, तो वो इनर्वेशन, वो इम्पल्स, वो एक्शन पोटेंशियल दूसरी मसल में भी बहुत ही आराम से ट्रांसमिट होता है टू दिस सिंसाइशियम. सिंसाइशियम यानी एक मसल जो है एक्टिवेट हुई, उसने दूसरी मसल को आराम से एक्टिवेट कर दिया. एक साथ सारी मसल एक साथ एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है. वो कैसे? क्योंकि उनके बीच में होते हैं गैप जंक्शंस. गैप जंक्शंस के थ्रू क्या होता है? आयंस का फ्लो होता है. तो जैसे ही आयंस का फ्लो होता है गैप जंक्शंस के बीच में, एक एक्शन पोटेंशियल दूसरी मसल लेयर में आराम से ट्रांसमिट हो सकता है. दिस इज द एडवांटेजेस. बाकी जो मसल लेयर होती है, दे हैव टू टाइप्स ऑफ मसल लेयर, दैट इज सिंगल यूनिट मसल एंड मल्टी यूनिट मसल. सिंगल यूनिट यानी कि सारी मसल का इनर्वेशन एक नर्व से हो रहा और एक सिंगल यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. मल्टी यूनिट में ये होता है कि सब अलग अलग डेफिनेट फंक्शन करती है. तो अलग अलग ऑर्गन्स में दीज सिंगल यूनिट एज वेल एज मल्टी यूनिट मसल्स आर लोकेटेड. अच्छा, after that, major functions of the GIT, you know that ingestion is there, digestion, then secretion, absorption and elimination. Ingestion of food होगा, digestion होगा, then mastication and chewing occurs in the mouth through the teeth. There is incisors, ICPM, canine premolar and molamolar. Then digestion, mechanical and chemical, two types of digestion is there. Mechanical digestion यानी breaking, churning of the food into smaller particles. And chemical digestion, when the enzymes as well as hormones act on the food, there is your chemical digestion. Then the secretion occurs. Secretion में क्या है? Digestive juices, digestive fluids. When they act, absorption in the small intestine as well as large intestine में जैसे absorption of food हुआ. And elimination through the fecal matter through the anus. तो यहाँ पे ये ingestion और digestion का पूरा डायग्राम बना हुआ है. फूड आता है कैसे इसोफेगस के थ्रू, एंड देन देयर इज प्रोपल्शन ऑफ फूड एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, सारा प्रोसेस चलता है. ओके.
अच्छा, we all know that I was telling you about the mind trick plexus. अच्छा, क्या हो गया? बच्चे लोग की प्रेजेंटेशन वो शेयर कर देते हैं। अच्छा अच्छा, ये गलती से हो गया उनसे क्या? उनसे बटन दब जाता है। तो मैं जहां से कर रही थी वहीं से स्टार्ट करूँ? Okay, don't pull any buttons. Okay, that this will delay our lecture, and I don't have that much time. Actually, we're not getting for this lecture too much time. Where was I? I was on the this peristalsis, muscular movement of the GIT. So, as I told you, कि entering nervous system में there are two plexuses, spine tree as well as distal. Spine tree plexus, that is ornate plexus. वो क्या करता था? GIT propulsion of food. फूड को आगे बढ़ाता है, propulsion यानी फूड को आगे बढ़ाना। अब फूड को आगे बढ़ाने के लिए what are the process? Like पेरिस्टाल्सिस होगी, मिक्सिंग होगा और सेगमेंटेशन होगा। पेरिस्टाल्सिस में क्या है? फूड जो है वो सीधे माउथ टू एनस की तरफ, ओरोफेरिंक्स टू द रेक्टम पुश होगा। So what this process, ये मैग्नेटिक प्लेक्सस जो है मूवमेंट में हेल्प करता है। मूवमेंट इज ऑलवेज फॉरवर्ड, इट इज द लॉ ऑफ दिस प्रोपल्सिव मूवमेंट कि ये जो मूवमेंट होगा वो माउथ टू एनस होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्शन फेज होती है जो फूड को बिफोर, मतलब पहले जो है दोनों साइड साइड मूवमेंट के लिए स्टार्टिंग होता है, लेकिन जो माउथ की तरफ का प्रोपल्शन होता है वो अपने आप डाई हो जाता है, आगे की तरफ मूवमेंट कंटिन्यू रहता है। सो पेरिस्टाल्सिस जो है वो हमेशा आगे की ओर फ्लो करती है। फूड जो है पहले जो जैसे फूड पार्टिकल है इन योर दिस होल, लेकिन जैसे इन द ईसोफेजियम पहले इसको नीचे जाना है, तो ईसोफेगस की पहले की जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो पहले उधर से फूड कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, कंस्ट्रिक्शन होगा, फूड आगे आएगा। जैसे आपने देखा होगा वॉर्म को चलते हुए, वो क्या करता है? पहले कंस्ट्रिक्ट करता है, फिर आगे मूव करता है, फिर कंस्ट्रिक्ट करता है, आगे मूव करता है। उसी तरीके से देयर इज पेरिस्टाल्सिस सेगमेंटेशन एंड मिक्सिंग। पेरिस्टाल्सिस में मूवमेंट हुआ, देन मिक्सिंग मोशन हुआ ओरल कैविटी से, दैट अलाउज द जीआईटी टू रिपीटली ब्रेक द पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन में क्या हो रहा है? वही जो मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इंडिपेंडेंटली अलाउइंग स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्ब द फूड पार्टिकल्स। ओके, ये है, देखिए माउथ से यहाँ पे पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ आगे की फेज में, और फिर प्रोपल्शन हुआ आगे की ओर, फूड ऐसे आगे जाता जाएगा एंड फूड इज मूव फॉरवर्ड। यानी पहले हाफ में कॉन्ट्रैक्शन था, फिर नेक्स्ट हाफ में होगा, और इसी तरीके से फूड विल मूव फॉरवर्ड। डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा आपका माउथ एंड ओरल कैविटी से इटसेल्फ। तो एट फूड enters the GI tract by ingestion and food broken down into smaller particles of food। जब माउथ में होता है तो पहला एंजाइम that acts on the food particle in digestive tract, that is amylase। amylase कहाँ होता है? That is in our saliva। saliva में amylase होता है, that converts the polysaccharide into the disaccharidases। तो salivary glands कौन सी होती हैं? submandibular, sublingual, ठीक है, main salivary glands and parotid gland जो acts on the food particles। अच्छा, टंग जो है that mixes the food particles, manipulates during mastication। फिर chew करने के बाद food converts into a bolus along with the mixing of saliva, bolus में convert हो जाता है for the easier passage to the pharynx। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? these are the major and minor salivary gland, sublingual है, parotid gland and teeth as well as whole the process is stored in the mouth। okay, फिर क्या होता है आगे जाके? as the food reaches from the mouth to the esophagus, esophageal में mucus glands होती हैं, mucus में food को cover करती हैं and food enters the stomach। stomach में that is a pouch like organ। stomach is divided into 4 regions that are cardiac, fundus, body and pylorus। कार्डियक उसके माउथ ऑफ द स्टमक पे होता है, फंडस बॉडी के पहले का जो उभरा हुआ पोर्शन है, दैट आई विल टेल यू इन द डायग्राम,
and then pylorus. Pylorus is small portion that enters the intestine, last portion of the stomach. अच्छा, यहाँ पे 2 स्फिंक्टर्स होते हैं. कोई भी चीज है आने से पहले ढक्कन तो लगा होगा, वो ढक्कन खुलेगा, वो चीज आएगी, बंद होगा तो वो चीज then it will go back. पहला जो स्फिंक्टर होता है, 2 स्फिंक्टर होंगे, कार्डियक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, ईसोफेगस से जब स्टमक में फूल जाता है. एंड द लास्ट स्फिंक्टर जब स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है वो है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर. उसके बाद क्या होता है, फूड एंटर किया, यहाँ पे देखिए, सी there is cardiac gland, there is fundus, then the body of the stomach and pylori. Pylorus जो होता है that is pyloric canal जो आपके small intestine में enter कर रही है, and pyloric antrum, ठीक है. Pyloric antrum में there are folds called rugae. What these folds do? Rugae folds क्या करते हैं? Rugae folds जो है surface area of the stomach बढ़ाते हैं. उससे क्या होता है, absorption of food, digestion और proper होता है because of this rugae, ठीक है. अच्छा, तो आगे भी आप पढ़ोगे कि मेन डाइजेशन फंडस में, स्टमक में 2 जो है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. एक ऑक्जेंटिक ग्लैंड होती है दैट इज योर ऑक्जेंटिक या गैस्ट्रिक ग्लैंड. दूसरी क्या होती है, पाइलोरिक ग्लैंड्स. पाइलोरिक ग्लैंड्स तो विल स्टडी अबाउट देम. अब देखो, एक हो गई आपकी, मैंने बोला गैस्ट्रिक ग्लैंड, दूसरी है पाइलोरिक ग्लैंड, ठीक है. तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है उसमें गैस्ट्रिक सेल्स होती है. गैस्ट्रिक ग्लैंड को भी ऑल्सो कॉल्ड इट ऑक्जेंटिक ग्लैंड. ऑक्जेंटिक है तो क्या सिक्रेट करेगी, HCl. मेन फंक्शन क्या है उसका, HCl. अलॉन्ग विद HCl उसके पास कुछ सेल्स होती है. एक सेल होती है उसकी पैराइटल सेल, एक होती है चीफ सेल, ठीक है, एंडोक्राइन सेल. तो मेन आपको ये जानना है कि उसमें आप जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जिसको ऑक्जेंटिक ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, दैट सीक्रीट्स HCl, दैट हैज पैराइटल सेल एज वेल एज चीफ सेल. गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक पिट्स होती है इसमें HCl सीक्रेट होता है. गैस्ट्रिक पिट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है. अच्छा, म्यूकस सेल्स भी होती हैं, कुछ सीक्रेट म्यूकस, क्योंकि भाई स्टमक में एसिड को कंटेन करना है. उस एसिड का पीएच है 0.8. इतना एसिड अगर होगा उसे अगर कंटेन नहीं किया जाएगा then it will burn all your stomach. इसे कंटेन करने के लिए कैसे कंटेन करता है, दैट इज द लेयर ऑफ हेवी म्यूकस इन द स्टमक. अच्छा, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो Yes, ma'am. पैराइटल सेल्स आपकी क्या सिक्रीट करती है? पैराइटल सेल्स आपकी जो है दी सिक्रीट द HCl मेनली. चीफ सेल्स को पेप्टिक सेल्स भी कहा जाता है. पेप्टिक सेल्स पेप्सिनोजन जो एक इनएक्टिव फॉर्म है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करती है. ये पेप्सिनोजन जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन. ये करता क्या है, दैट इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम. तोड़ता है प्रोटीन को. द स्टमक एट pH 2 to 3. लेकिन जैसे ही pH 2 से कम होता है वैसे ही ये आपकी पैराइटल वो आपकी जो है ये पेप्टिक सेल्स ये इनएक्टिवेट हो जाती है. और ये यहाँ पे देखिए बना हुआ है ना HCl. जब HCl आता है पैराइटल सेल से वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है. अच्छा, दीज आर द आई एम टेलिंग अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड. दूसरी ग्लैंड जो मैंने बोली थी वो होती है पाइलोरिक ग्लैंड. पाइलोरिक ग्लैंड में भी म्यूकस सेल्स होती हैं स्टमक की. और वो म्यूकस सेल्स जो होती हैं व्हाट दे डू, पाइलोरिक ग्लैंड की म्यूकस सेल्स जो है और साथ में दे हैव गैस्ट्रिक जी सेल्स. गैस्ट्रिक जी सेल्स क्या करेंगी, गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करेंगी. हमें गैस्ट्रिन की जो सिक्रीशन है उसकी क्या जरूरत है, जी सेल्स जो गैस्ट्रिन सिक्रीट करती है वही गैस्ट्रिन जो होता है वो जाके पाइलोरिक मतलब पैराइटल सेल्स पे एक्ट करके HCl का सिक्रीशन करता है. HCl निकालने के लिए जो एक्टिवेशन है वो हमें कौन देता है, जी सेल्स से जो गैस्ट्रिन मिलता है. गैस्ट्रिन एक्टिवेट करता है HCl निकालने के लिए पैराइटल सेल्स पे.
अच्छा, रेगुलेशन कैसे होता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन का? नर्वस रेगुलेशन और हार्मोनल दोनों मैकेनिज्म चलते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए। अब फूड जैसे ही ओरल कैविटीज इसोफेगस से पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स उसको स्टिमुलेट करेंगी और निकलेगा आपका जी सेल से गैस्ट्रिन। जैसे ही जी सेल्स निकलेगा, जितना ज्यादा गैस्ट्रिक जी सेल्स जो है स्टिमुलेट होंगी उतना ही गैस्ट्रिन का सिक्रेशन होगा। दैट इज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, अब फूड आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है इन द स्टमक एंड इट इज बीइंग starting to be broken into smaller pieces like in digestible form. It is being acted upon by these enzymes as well as this HCl. तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है। अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब फूड की एमटाइम हो रही है फ्रॉम द स्टमक, सिंपैथेटिक नर्व्स इनहिबिट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड गैस्ट्रिक। तो सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक के सिक्रीशन को रोकती है, क्योंकि हमारा जो फूड है अगर वो स्टमक से अब इंटेस्टाइन में जा रहा है तो व्हाट वी हैव टू डू, क्योंकि ये जो स्टमक का था दैट वाज एसिडिक, इंटेस्टाइन का क्या है? दैट इज अल्कलाइन। तो वहां से जाने के लिए हमें एक रिफ्लेक्स चाहिए कि भाई अब वी हैव टू स्टॉप दिस सिक्रीशन, acidic secretion to be stopped because the food is now moving into intestine and it does not need more acidic pH. इस वजह से एक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। 3 फेजेस में ये फूड जो है स्टमक में, ये 3 फेजेस होती है लाइक सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज और इंटेस्टिनल फेज। इन्हीं 3 फेज में फूड जो है वो स्टमक में आता है, वहां पे एंजाइम्स और एसिड एक्ट करता है और वो इंटेस्टाइन में पास होता है। सी यहाँ पे हम देखेंगे दिस डायग्राम इफ इट इज विजिबल टू यू। सिफेलिक फेज जब आई तो सिफेलिक फेज तभी स्टार्ट हो जाती है जब व्हेन द पर्सन थिंक्स अबाउट द फूड एज वेल एज व्हेन द पर्सन देयर इज टेस्ट सेंसेशन। जब आपने फूड को देखा, जब आपने उसको उसके टेस्ट के बारे में सोचा, देन ओनली सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ, सिफेलिक फेज स्टार्ट हो जाती है। वहां से क्या होता है, आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इंपल्सेस आते हैं। ठीक है, जैसे ही आप साइट ऑफ द फूड से उससे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इंपल्सेस आए, वो इंपल्सेस आपके हाइपोथैलेमस में गए। हाइपोथैलेमस से ये हुआ कि हमें स्टमक में एसिड का सिक्रीशन या फिर जो भी एंजाइम सिक्रीट करने उन्हें स्टार्ट करना है। हाइपोथैलेमस अब ये मैसेज कौन लेके जाएगा? वेगस नर्व। वेगस नर्व दैट विल गो टू द स्टमक। ठीक है, वहां से लेके जाएगी दिस you can call this impulse। फिर क्या होता है, आपकी गैस्ट्रिक फेज स्टार्ट होती है। गैस्ट्रिक फेज में व्हाट हैपेंस, लोकल रिफ्लेक्सेस एक्ट करते हैं, यानी स्मूथ मसल्स जो है सब जगह वहां पे स्ट्रेच रिफ्लेक्स होते हैं। अब ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स जैसे ही एक्टिवेट होंगे ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, मतलब जो है एंजाइम्स का सिक्रीशन स्टार्ट होगा, हार्मोन्स का सिक्रीशन स्टार्ट होगा, वेगल रिफ्लेक्सेस आएंगे और सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द स्टमक ये स्टार्ट हो जाएगी। अब दूसरा चीज ये है व्हाट यू सेइंग कि प्रोसेस जो चल रहा था दैट वाज ऑल अबाउट कि हम कैसे भी वेगस से हमें मालूम है कि वेगस इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्व, वो क्या निकालेगी? एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन 3 काम करेगा स्टमक में, 3 काम कराएगा। एक तो म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस सीक्रेट कराएगा, पेराइटल सेल से HCl सीक्रेट कराएगा। ठीक है, और तीसरा जो है एक्टिवेट कराएगा जी सेल्स को। जी सेल्स जो गैस्ट्रिन सेल्स है वो एक्टिवेट होगी। एक होती है एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स। ठीक है बच्चों, तो एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स जी सेल्स जैसे ही एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स में जाके एक्टिवेट कर, ये एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स आपकी मेन बॉडी ऑफ स्टमक में ही होती है। एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स जैसे ही एक्टिवेट होंगी दे रिलीज हिस्टामिन, जो इसमें नहीं लिखा है। हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन मेनली एक्टिवेट करता है आपके पाइलोरिक ये पेराइटल सेल्स को HCl निकालने के लिए। तो ये HCl निकलने का जो प्रोसेस है वो कई सारे उससे होता है। तो मेन एंटेरोक्रोमैफिन सेल हिस्टामिन रिलीज करती है, जी सेल से वहां से भी होता है। दूसरा जो है पेराइटल सेल्स डायरेक्ट एक्टिवेट होती है, वहां से भी होता है। एसिटिलकोलिन एक्टिवेट कराता है, वहां से भी होता है। तो मेनली जो है जी सेल्स एसिड सिक्रीशन स्टार्ट कर देंगी एंड
द फूड जो ईसोफेगस से स्टमक में पहुंच चुका था उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ये दो फेजेस बताई, सिफेलिक एंड गैस्ट्रिक फेज, जहाँ पे ये सारा इंटेस्टिनल फेज में यानी कि फूड को प्रिपेयर होना है स्टमक से इंटेस्टाइन में आने के लिए। तो वहाँ पे क्या है, पीएच तो ऑलरेडी लो था क्योंकि स्टमक का पीएच जो है जो डाइजेशन कर रहा है वो बहुत कम है वहाँ पे एसिड की वजह से, then it is being propels to the intestine। अब वहाँ पे जब presence of low pH, partially digested foods, fat, whichever is there, जितना भी digestion पॉलीसेकेराइड का डाइसेकेराइड में कन्वर्जन हो चुका है वहाँ स्टमक में, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स थे वो पेप्टोन्स या डाइपेप्टाइड में टूट चुके हैं, ठीक है, वो आगे प्रोपल्स हो रहे हैं एंट्री। तो वहाँ पे एक एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है। एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स क्या करता है कि फूड को इंटेस्टाइन में वहीं तक आने देता है जहां तक कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लिमिट डाइजेशन के लिए, क्योंकि जैसे ही दैट इंटेस्टाइन इज फिल्ड एंड मोर फूड इज कमिंग टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन, तो एक रिफ्लेक्स आएगा इंटेस्टाइन से एंटेरोगैस्ट्रिक दैट स्टॉप्स द फूड फ्रॉम बीइंग प्रोपल्स फॉरवर्ड, ठीक है। तो वो रोक लेगा वहां पे, एज वेल एज वहां पे एंजाइम्स भी दूसरे एक्ट होंगे और पीएच भी एसिड टू बेसिक हो जाएगा इंटेस्टाइन में। तो these enterogastric reflexes you can see यहाँ पे डिस्टेंशन हो जाएगा स्टमक का एंड फैटी एसिड्स लोकल रिफ्लेक्स एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स एक्ट करेगा और प्रोपल्शन थोड़ा सा रोकेगा, ठीक है। अब फूड हैज कम नाउ इनटू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में आने से पहले व्हाट आई टोल्ड यू कि जो एसेसरी आपके ऑर्गन्स हैं दैट हेल्प्स इन डाइजेशन दैट आर पेनक्रियाज एंड liver, okay, and gallbladder। So let's see something few lines about them also। pancreas जो है that is a gland, it is it's an organ in which both exocrine as well as endocrine glands are located। so 98% of pancreas है that have exocrine function and endocrine जो है islets of Langerhans जो कि हार्मोन सिक्रीट करती है, that is around 1 to 2% insulin। so we see that pancreas में inactive molecules zymogens शो होते हैं, ठीक है, वहाँ that has the risk of self digestion within the pancreas। अच्छा, pancreas we know that pancreas में कौन से दो मेन हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, that is हार्मोन्स में अगर आए Trypsinogen, chymotrypsinogen and procarboxypeptidase। ठीक है। तो these are the what do we see that these are the inactive form of enzyme जिन्हें एक्टिवेट करना है, ठीक है। अब we see that SNR cells होती है, उनकी एक्सोक्राइन एक्टिविटी होती है पेनक्रियास में, ठीक है। तो food to solid absorbable particles में कन्वर्ट करती है while this insulin and glucagon that functions we all know already that insulin has its function in this regulation of carbohydrates, glucose के regulation में, then glucagon blood sugar बढ़ाता है, ठीक है। See यहाँ पे accessory pancreatic duct in this and this pancreas are there and all the pancreatic secretion through this that is your common hepatic duct and bile duct, ठीक है, that is regulated towards the intestine। यहाँ से major pancreatic enzymes what he has told that child, pancreatic amylases, lipases, nucleases and proteinases, ठीक है, these are the main pancreatic enzymes that digest polysaccharide into disaccharidases, triglycerides to fatty acid में lipase convert करता है, nucleic acid into nucleotides and pancreatic proteinases digest the peptide into amino acids। अच्छा, इसमें एक पेनक्रियास में there is also one kind of enzyme that keeps these enzymes into the inactive form। अगर ये एक्टिवेट हो जाएंगे एंजाइम्स पेनक्रियास के अंदर ही, दिस कैन डाइजेस्ट द पेनक्रियास इटसेल्फ। इस वजह से एक इनएक्टिव फॉर्म में इनके रखने के लिए एक एंजाइम उनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है पेनक्रियास दैट कीप्स देम इनएक्टिव। जब आपको एक्टिव पेनक्रियाटाइटिस की कंडीशन होती है तो व्हाट हैपेंस कि
यही एंजाइम जो है एक्टिव हो जाता है, दैट कैन नॉट बी इनएक्टिवेटेड और दैट डाइजेस्ट ऑल द पैनक्रियाज, बिकॉज ये फिर जो ये एंजाइम थे उन्हें इनएक्टिव फॉर्म में नहीं रख पाता। ट्रिप्सिनोजन inactive form that is secreted by the duodenum, that is being converted into trypsin. Chymotrypsinogen is also converted into chymotrypsin. These are also जो है आप कुछ कह रहे थे, ठीक है? तो procarboxypeptides and these are converted into their active forms. See, you can see यहाँ पैनक्रियाज जो है आपका आ रहा है इंटेस्टाइन में, एंड ड्यूोडेनम से जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है आपका एंटेरोकाइनेज, एंटेरोपेप्टिडेज, ठीक है? ये ट्रिप्सिन इटसेल्फ एक्ट एज एन एक्टिवेटर, ये जितना बनता जाता है ये खुद इटसेल्फ एक्टिवेट्स द ट्रिप्सिनोजन टू बी कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन। फिर काइमोट्रिप्सिनोजन को भी ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन में एक्टिवेट कर देता है, तो इंटेस्टाइनल जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट कौन कर देता है, यहाँ पे आकर के दिस एंजाइम्स, ठीक है? अब आगे we all know that pancreatic secretion is also ruled by the parasympathetic nervous system. दो hormones हैं duodenum के, that are duodenal mucosa से these are secreted, ठीक है? दोनों we see कि दोनों hormones क्या है, एक है secretin और दूसरा cholecystokinin। cholecystokinin के लिए क्या what is the reflex, cholecystokinin जो है क्या चीज एक्टिवेशन के लिए cholecystokinin सीक्रेट हो, what is the activation you can say reflex, इसके लिए क्या होता है, cholecystokinin कब सीक्रेट होता है? मैंने HCl जब पेप्सिनोजन को जो पेप्सिन में कन्वर्ट करता है तब वहां पर कोलेसिस्टोकाइनिन काम करता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन कैसे एक्ट करेगा? शायद सिक्रेटिन करता है मैम, थोड़ा कंफ्यूजन है। सी इंटेस्टाइन में जब आपका ये पेप्टाइड्स पहुंच गए, प्रोटीन पहुंचा, तो वो एक्टिवेट करते हैं आपका कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज कराने के लिए, ठीक है? और सिक्रेटिन जब एसिडिक फूड आपका इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो क्योंकि सिक्रेटिन मेनली बाइकार्बोनेट रिलीज करता है, तो इंटेस्टाइन में सिक्रेटिन का सिक्रेशन ही तभी होता है जब देयर इज एसिडिक फूड व्हिच एंटर्स द इंटेस्टाइन, ठीक है? बाइकार्बोनेट सिक्रेट करने के लिए तब सिक्रेटिन आपका रिलीज होता है। अच्छा, वहां पे तो आपकी पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए तो आपके लिए वहां पे वो सेल्स थी ना, पेप्टिक सेल्स थी, वो वहां पे एसिडिक पीएच चाहिए था 2 to 3 का। यस मैम। अच्छा, सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? सिक्रेटिन जो है बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन करेगा, और कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये एंजाइमेटिक सिक्रीशंस का। कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीजेस बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, बाइल जो है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, दैट इज रिलीज फ्रॉम द कोलेसिस, वन ऑफ द फंक्शंस, ठीक है? कोलेसिस्टोकाइनिन का ये दूसरा फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ जो है बाइल इन गॉल ब्लैडर, एंड दैट इज रिलीज का जो है दैट फंक्शन इज क्रिएटेड बाय कोलेसिस्टोकाइनिन। यहाँ पे अगर हम देखें जो प्रोसेस चल रहा है कि सिफेलिक एंड गैस्ट्रिक फेजेस में वेगल नर्व स्टिमुलेशन हुआ था, पैनक्रियाटिक जूस निकलना स्टार्ट हुआ था गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन से बाइल निकलेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉज्ड बाय कोलेसिस्टोकाइनिन। अच्छा, बाकी दूसरा जो एसिडिक काइन था आपका इंटेस्टाइन में, ठीक है, वो रिलीज हुआ, सिक्रेटिन वहां पे एक्ट करेगा एसिडिक काइन पे, ठीक है? अच्छा, काइन कहाँ पे होता है और काइन कहाँ पे होता है? मैम काइन स्टमक में होता है। एंड काइन CHYLE और CHYLE? मैम काइम इज इन स्टमक एंड काइल इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट। तो स्टमक में आपका काइन था, और जब इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इट्स कन्वर्टेड इनटू काइन, ठीक है? काइल पे एक्ट करेगा। काइल का जो एसिडिटी है दैट इज बीइंग एक्टेड बाय बाइकार्बोनेट्स, उसका भी एक पूरा का पूरा आपके सेल में एक मैकेनिज्म चलता है दैट कन्वर्ट्स जो है
काइम इनटू काइल और उसे वो बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है फूड को, जिसमें बाकी एंजाइम्स एक्ट कर पाए। ठीक है, फिर पेनक्रियास में जब पहुंचा, पेनक्रियास से वहां कोलेसिस्टोकाइनिन इंड्यूस किया पैनक्रियाटिक एंजाइम जूस में, एंड दिस बाइल इज सीक्रेटेड। बाइल फैट का डाइजेशन करता है। फैट का डाइजेशन बाइल कैसे करता है, कोई मुझे बताएगा? हाउ डज इट डाइजेस्ट? मैम बाइल जूस इमल्सिफिकेशन की सहायता से। मैम इमल्सिफिकेशन करता है उसका। राइट राइट। एमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैम उसके ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्ट। ब्रेकडाउन इनटू ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है, माइसलीस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है फैट। ठीक है, और काइलोमाइक्रॉन्स फॉर्म में वो कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव होता है, प्रोटीन कोटेड क्लाइमेक्रॉन। हाँ। अगर हम वी कम इनटू द लिवर, इसके इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं, दैट वी नो दैट ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस होता है। ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजिनोलिसिस यानी कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। तो लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। लीवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट organ for our body, for our body, for we can say for digestion as well as for other functions like secretory function भी है liver के like उसमें बहुत सारे जो आपके blood clotting factors होते हैं, that are also being formed in liver, and all the fat soluble vitamins that are being stored, and detoxification is one of the important functions that happens in the liver, and it acts also as a blood reservoir. ठीक है, lipid metabolism, lipid का storage, that is also lipogenesis जिसको कहते हैं, वो इंसुलिन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, इंसुलिन does the lipogenesis and that is also done in liver। तो यहाँ पे लिखा हुआ है is also is critical in lipid metabolism where hepatic cells produce bile। ठीक है, bile जो प्रोड्यूस हुआ वो फैट का एमल्सिफिकेशन कराएगा, ऑक्सीडाइज करेगा फैटी एसिड्स को। अच्छा, इसको बहुत डिटेल्ड फॉर्म में भी आल्सो यू कैन स्टडी दैट एमल्सिफिकेशन एंड दैट बाइल सिक्रीशन। ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम वी आर नॉट डिस्कसिंग इट वेरी मच। हम लोग अगर कोई और लेक्चर हमें मिलेगा तो वी विल स्टडी डिटेल अबाउट द बाइल सिक्रीशन। सिंथेसाइज वेरियस फॉर्म ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स को सीक्रेट करना, ग्लूकोज को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना, these are all the functions of liver mainly। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ऑल द मेटाबॉलिज्म, ये सारे के सारे लिवर में चलते हैं। गॉल ब्लैडर का वी हैड स्टडीड कि सैक, स्मॉल सैक होता है। ठीक है, दैट इज लोकेटेड इन द इंफीरियर विसरल सरफेस ऑफ द लिवर एंड स्टोर्स concentrate the bile that is released by the contraction gland। काइम होता है with fat enters the small intestine, intestine mucosal cells होते हैं that secrete the hormone cholecystokinin into the bloodstream। This cholecystokinin that stimulates the gall bladder wall to contract and bile passes down to the cystic duct और bile duct से duodenum में bile पहुंच जाता है and bile acts on the food particles जो कि है जो फैट है वहाँ पे। ये प्रोसेस हो रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में once the food has reached, and we have already discussed, small intestine has divided into duodenum, jejunum and ileum। Secretions क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके सीक्रेट होता है। तो मेनली यहाँ पे फूड को, मेनली जो आपका प्रोटीन है उसे पॉलीपेप्टाइड से डाइपेप्टाइड फॉर्म में था, वो मोनोपेप्टाइड फॉर्म में एज वेल एज अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाना होता है। यहाँ पे फैट का ऑलरेडी भी हैव नोन, जो हमने डाइजेशन करा ही लिया। बाइल एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पे मोनोसैकेराइडेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। We can read this paragraph for that। Intestinal glands secrete a watery fluid that lack the digestive enzymes। ठीक है, but provides a vehicle। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स क्या है? वेहिकल, यानी कि देखिए मेनली क्या होता है,
I have told यूगी जो थे वहां पे स्टमक में इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया, स्टमक का सरफेस एरिया बढ़ा रहे थे. एंड lacteals are present in small intestine that increases the surface area of the small intestine. lacteals जो होते हैं विलाई lacteals के फॉर्म में होते हैं, that increases the surface area of small intestine. intestinal glands जो secrete करती है, ठीक है, तो वो सारा जो काइम आता है आपका इंटेस्टाइन में, that is moved to the villi, वहां पे सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है और सारे एंजाइम्स जो है वहां एक्ट करते हैं. लाइक द माल्टेज जो अगर एंजाइम एक्ट वहां करेगा देन इट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू माल्टोज. सुक्रोज में कन्वर्ट कर देगा, सुक्रोज को ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट करेगा. लैक्टेज से है दैट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज. पेप्टाइड है वही प्रोटीन का करेंगे, लाइपेज फैटी एसिड्स है, न्यूक्लियस नाइट्रोजन बेसिस न्यूक्लिक एसिड्स का करेंगे, एंट्रोकाइनेज ट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा दिस और दिस फूड इज गोइंग टू द विलाई वेल 200 टाइम्स 1000 टाइम्स जो है सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है इंटेस्टाइन का विलाई. ठीक है, वहां पे लैक्टेल्स होते हैं, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वहां पे. दैट इज वी कैन से इट इज सेड इन राइट इट इज रिटन सरफेस एरिया बिकम्स the size of a tennis court, 1000 times बढ़ जाता है. फोल्ड्स होते हैं, ठीक, ये फोल्ड्स होते हैं, अगर अंदर से में देखेंगे तो ये बहुत टाइम्स सरफेस एरिया को इंक्रीज करा देते हैं. यहाँ के सरफेस पे माइक्रो विलाई होते हैं, तो मतलब विलाई डिवाइड होते रहते हैं माइक्रो विलाइज में और सरफेस एरिया बढ़ता रहता है. इसी वजह से यू कैन सी द विलाई आल्सो. तो ये लिखा भी है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो एम्बेडेड होते हैं माइक्रोविलाई में दैट आर यूज्ड शुगर, प्रोटीन्स एंड फैट्स. ठीक है, अब रेगुलेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीशंस जो था दैट इज ऑल स्टिमुलेटेड एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वहां पे. नाउ विलस जो था, वन ऑफ द डायग्राम यू सी विलस इससे जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है. ऑन द सरफेस ऑफ विलाई देयर आर लॉट्स ऑफ माइक्रोविलाई जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कराते हैं और एब्जॉर्प्शन होता है. विलस में ब्लड कैपिलरीज होती है दैट एब्जॉर्ब वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स ऑल कंटेन. लिम्फेटिक कैपिलरीज और आल्सो दैट जो भी रिमूव करना है, जो हमें जितना भी वेस्ट है दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिम्फेटिक कैपिलरीज इन लैक्टियल्स. ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद. और food also moves to the इसी chain में the fatty acids in the form of mycelials. Food water feed absorption हो गया, osmosis से fatty acids का जो है absorption हो रहा है और diffusion के through होता है. Most of the nutrients that are also absorbed by active transport. जैसे glucose है, facilitated diffusion भी होता है glucose का, ठीक है, सोडियम के साथ and amino acid. तो इनको सीधे कहाँ जाना है, आपके ल्यूमन में जाकर एब्जॉर्ब होना है. ठीक है, फ्रॉम द ब्लड. और जो वेस्ट को है लिम्फेटिक में जाना है. लार्ज इंटेस्टाइन में वी नो दैट द पार्ट 2 to 3 inches लॉन्ग है और you all know about the parts are divided into cecum, colon, ascending, descending and sigmoid colon, rectum, anal canal and anus. This is the parts of the large intestine जहाँ पे मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड होता है. अच्छा, फैट क्या मेनली आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? कैन एनीवन टेल? मैम लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन, duodenum is a part of small intestine. Large intestine is cecum, colon, rectum, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना. तो अगर आप आयरन बोल रहे हो और आयरन को अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन बोलोगे तो ड्यूडनम नहीं, मैक्सिमम जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो जेजुनम में होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू ड्यूडनम, जेजुनम. ठीक है ना. तो ड्यूडनम जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, जेजुनम मिडिल पार्ट होता है. ठीक है, मेजेंट्रिक. फिर उसके बाद आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आती है. तो मैक्सिमम आयरन का एब्जॉर्प्शन जो होता है दैट अकर्स इन जेजुनम. ठीक है. अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गई, जो आपका ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स थी, ठीक है, दैट वाज सिक्रीटिंग
पेप्सिनोजन, दिस पैरेंटल सेल्स जो कि HCl सिक्रीट कर रही थी, दे आल्सो सिक्रीट कार्सन्स इंट्रिंसिक फैक्टर। सुना होगा, कार्सन्स इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? कार्सन्स इंट्रिंसिक फैक्टर B12 के अब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 का ऑब्जर्प्शन होता है वहाँ पे। राइट, B12 के अब्जॉर्प्शन को कराता है। तो जैसे ही जो ये कार्सन इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, दैट कैसे कराता है? क्योंकि वो बोन मैरो से मैच्योरेशन जब RBC का हो रहा होता है तो उसे जो है फास्टिंग कराता है, उस प्रोसेस को मैच्योरेशन होता है और उससे फिर दिस B12 इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन दिस है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि कार्सन इंट्रिंसिक फैक्टर कमी हो गई है, इट्स नॉट कमिंग आउट, तो मेगलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है पेशेंट को। क्यों हो जाता है? क्योंकि B12 का अब्जॉर्प्शन अब नहीं हो पा रहा है। B12 का अब्जॉर्प्शन होने से पहले मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में सेल्स मैच्योर ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके कार्सन इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं निकल पा रहा है, वो B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं करा रहा है और इससे मैच्योरेशन नहीं हो पा रहा है RBCs का बोन मैरो से, तो मेनली मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। सो तो large intestine we have said it has little or no digestive function, कोई digestive function नहीं है, mainly mucus secretion है। villi ये microvillus नहीं होता है, contains goblet cells, goblet cells are in the formation of feces, maintain an alkaline condition। ठीक है, अब वहाँ तो स्टमक में तो आया एसिड बेस, बाकी जैसे ही वो इंटेस्टाइन में फूड एंटर किया है और फूड बैठा दैट वाज एसिडिक, पूरे प्रोसेस से चला आ रहा है कि इसको एल्कलाइन बना देना है। pH 7 to 8 होता है बाइल, तो बाइल तभी सिक्रीट होता है तो pH 7 to 8 पहुंच जाता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो वो बेसिक बनाता जा रहा है। कहाँ वो 2 to 3 pH था और HCl का तो सीधे 0.8 था pH, और अब इंटेस्टाइन में आके दैट इज कंटिन्यू टू बी बेसिक। मैकेनिकल स्टिमुलेशन एंड पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल यहाँ भी होता है, न्यूरो सिक्रीशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन मेनली क्या है? एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है दैट अकर्स इन कोलन एंड इन large intestine. Electrolytes and vitamins are also absorbed in bacteria that act in the, and these break down indigestible substances into synthesize certain vitamins. The defecation process we all know that is reflex mechanism aided by voluntary contraction of diaphragm, muscle and external sphincter. External sphincter से this process takes place and defecation excretion takes place. अच्छा, defecation solid waste material के removal हो जाते हैं, and excretion liquid waste material में आता है excretion। ठीक है, तो डेफिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम के एब्डोमिनल मसल्स एंड स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड फूड पार्टिकल जो डाइजेस्ट हो चुका है एंड ऑल द एब्जॉर्प्शन इज बीइंग डन, व्हाटएवर वेस्ट मटेरियल इज लेफ्ट दैट इज बीइंग रिमूव्ड टू द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर व्हेन दैट ओपन्स। ठीक है, दिस प्रोसेस इज बीइंग कंप्लीटेड। तो ओवरऑल डाइजेशन नाउ वी हैव स्टडीड, होप यू ऑल हैव understood things